Shivangi. On behalf of ESL IMT Ghaziabad, we extend a warm welcome to our guests, Director Sir, Dean Sir, respected faculty, alums, and fellow batchmates to eConclave 2023. eConclave, our flagship event, brings together entrepreneurial talent from top B schools for a range of activities from entrepreneurship trivia, panel discussion, leadership talks, and workshops. Quick start this year's event, we have a very special guest with us. A well-known name in the Indian business community with vast knowledge of entrepreneurship, former VP of Kotak, former Director, Corporate Development at Amex, CFO of Grofers, co-founder of Bharat Pay, and our favorite shark. The man basically needs no introduction. And now, the moment we've all been waiting for. Please put your hands together for the sassiest shark, Ashneer Grover. The host for the evening, our very own Dr. Nihara Modkar, is faculty in the area of strategy, innovation, and entrepreneurship. He is the chair of PGDM Executive Program and heads the Center for Enterprise and Business at IMT Ghaziabad. Professor Nihar started his career by co-founding an educational enterprise and transitioned to academia by pursuing a PhD in entrepreneurship from University of South Wales. He spent 10 years in the UK in various academic management roles before moving to IMTG in 2021. We welcome you, sir. So the good thing about having to do this with an entrepreneur is that we always know how to leverage the limited resources. So welcome, as was said before, the man needs no introduction, okay? And one thing I would like to share with you, we were going through the admissions interviews, for the last couple of months. And a favorite question that I like to ask, because I come from the entrepreneurship area, is that who's your favorite entrepreneur? Usually we used to get the likes of Steve Jobs, Elon Musk. This year, I think I take great pleasure in saying 95% Ashneer Grover. Okay, I think that is telling about the man who's had such a huge impact on so many of our lives, okay? So let me just give you a background about who we are going to interact with. So he stands for something that most of us do not in a country wherein diplomacy and correctness is celebrated over everything else. I looked at his LinkedIn profile, and the latest title he likes to give himself is Own Master. And I thought that was a very vivid description of what he is, I think, as an entrepreneur, and I think as a person, so we'll get to know him better. So without any further ado, let me just ask you, Ashneer, what are the two things that shaped you into being the man that you are today? आवाज आ रही है? दो चीज़ें पता नहीं सर मेरे को मतलब आई थिंक एक चीज़ तो ये थी कि मैं अपने दोस्त की स्टार्टअप में चला गया, ठीक है, एंड उसने मेरे को बोला कि तू आ जा, बहुत मज़े आएंगे. मज़े तो बहुत आए, बट मैं फिर वापस नहीं जा पाया कभी उस दुनिया से. तो आई थिंक जो मैं ग्रोफर्स गया था वो एक एटलीस्ट लुकिंग बैक इन करियर वाइज वाज क्या बोलते हैं उसको, एक डिसीजन था जिसको आप वापस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि एक बार आपने एंटरप्रेन्योरशिप का आपको चस्का लग गया, आपको वो नशा चढ़ गया, तो देन नॉर्मल कॉर्पोरेट लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है. तो आई थिंक दैट वाज वन. The other I think would be like getting married to my wife, right? Because मैं बिल्कुल ही सर्विस बैकग्राउंड से आता हूँ, बिजनेस बैकग्राउंड से आती है. तो in a lot of way my aspiration to do business has got developed over time because of her. So I think वो दो चीज़ें हैं. बाकी किताब पढ़ लो यार, उसमें बहुत कुछ लिखा है. मतलब 350 रुपये की किताब आती है यार. मतलब मेरे को मैं सबको ये बोलता हूँ, देखो जितना ज्ञान था मैंने प्रोडक्ट बना दिया है, ठीक है. आपको उस सर्विस की तरह क्यों ले रहे हो मेरे से, ठीक है. जब मेरे को बुला रहे हो तो कुछ और नया पूछो. जो बिकॉज वो MBA में पढ़ाते हैं ना, सर्विस वर्सेस प्रोडक्ट, राइट.
तो वो सिंपल है भाई, देखो प्रोडक्ट बन गया है, अब सर्विस करनी है, वो स्केलेबल नहीं होती, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ बोल के जाऊँ, मैं कहीं और कुछ और बोलूँ, वो स्केलेबल है ही नहीं। प्रोडक्ट स्केलेबल है, तो किताब पढ़ लो, और या वेरी हैप्पी टू बी आंसर सम अतरंगी क्वेश्चंस, राइट, रादर देन सेइंग कि आप ऐसे कैसे बन गए। Absolutely. So that's a good, follow-up to the introduction. So you know this was not going to be a Rajeshri movie, okay, wherein everybody is happy, everything is going to go according to the script. It was not going to happen. So here goes. All right. So एक चीज़ मेरे को आपसे पूछनी थी. Let's drop into Hindi. Is जब हम लोग कॉर्पोरेट्स के साथ बात करते हैं, वो बोलते हैं कि यार हम लोग को ना बी स्कूल कैंडिडेट्स में एंटरप्रेन्योरियलिज्म नहीं दिखता है। और मैंने आपका एक इंटरव्यू सुना जहाँ पे आप बोलते हो कि ये लोग तो वो लोग हैं जो हर महीने आपको एक नमनेस का इंजेक्शन देते हैं कि आप सैलरी लो, खुश रहो, दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो ये एक आपका, अगर मैं टर्म बोरो करूँ, ये एक दोगलापन हो गया एक तरफ से। आपका क्या कहना है? नहीं है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब जो खुद एंटरप्रेन्योर नहीं है वो दूसरे में एंटरप्रेन्योर ढूंढ रहा है, ठीक है। भाई तू भाई तू खुद नौकरी कर रहा है, ठीक है। नॉट टू सेइंग कि कुछ गलत कर रहा है, ठीक है, मतलब 95% जनता नौकरी करती है, ठीक है। एंड अगर 95% जनता नौकरी नहीं करेगी तो 5% बिजनेसमैन सुपर नॉर्मल रिटर्न्स कहाँ से कमाएंगे, ठीक है। तो वो भी ज़रूरी है। बट यू नो इन अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आप बोल रहे हो कि एंटरप्रेन्योर नहीं है, एंटरप्रेन्योर नहीं है, एंटरप्रेन्योर का इंसेंटिव कहाँ है, ठीक है। हर चीज़ लाइफ में ना इंसेंटिव ड्रिवन होती है। आप एक सिस्टम बना रहे हो जहाँ पे आप बोल रहे हो यार आपकी इतनी सैलरी है, साल के एंड में बात करेंगे कितना इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। एंड साल के एंड में भी आपने बोल दिया जी देखो ऐसा है कि हमने तो बैंड बना दिए, आपने बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर लिया तो उसी बैंड के अंदर कहीं पे आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, तो अपसाइड का है। एंड एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज ड्रिवन बाय द अपसाइड। उसको ये थोड़ना है कि हाँ टीम मेरे को इस साल 20 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, मैं एंटरप्रेन्योरियल काम करता हूँ, अगले साल मेरे को 30 लाख रुपए सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। दैट्स नॉट इंसेंटिव इनफ, राइट। सो आपको वैसे ही लोग मिलेंगे जैसा आप इंसेंटिव डिज़ाइन करोगे। कॉर्पोरेट्स में एंटरप्रेन्योरशिप का कोई अपसाइड ही नहीं है, तो कोई जो रियल एंटरप्रेन्योर होता है वो जाता भी नहीं है, ठीक है। और वो लोग ना अपने आप को खुश करने के लिए बोलते रहते हैं हम क्या बोलते हैं, इंट्राप्रेन्योर हैं, ये वो है, मतलब ऐसे कुछ टर्म्स होती हैं अजीब सी, बट वो अपने आप को दिलासा देने के लिए, ठीक है। एक्चुअल में किसी कॉर्पोरेट के अंदर कोई एंटरप्रेन्योरशिप हो ही नहीं सकती। वो जो लाला जी बना गए थे धंधा वही चला रहे हैं बाकी मैनेजर लोग, ठीक है। बट कोई लाला जी थोड़ा है वहाँ पे अब। No, that very interesting because, और ये मैं एक थोड़ा स्ट्रेच कर लूँगा। स्टूडेंट्स को जब हम लोग पूछते हैं कि इंटरव्यू में हो, एडमिशन के टाइम पे हो या प्लेसमेंट्स के टाइम पे हो, कि आपका एंटरप्रेन्योरियल एस्पिरेशन है? जी हाँ है। तो प्लेसमेंट तो नहीं चाहिए होगी आपको? नहीं जी, प्लेसमेंट चाहिए मेरे को ना, 5-7 साल कॉर्पोरेट में एक्सपीरियंस लेना है, उसके बाद मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा। तो मेरा नॉर्मली एक रिएक्शन रहता है कि यार अपॉर्चुनिटी इज नॉट गोइंग टू वेट फॉर यू। और आप सच में एक एंटरप्रेन्योर हो क्या, कि अगर आप 5-7 साल अपना जो टाइम है किसी और को दे रहे हो, और शुड यू बी चेसिंग योर ड्रीम? आपका क्या एडवाइस है, मतलब व्हाट शुड दीज गाइज डू? यार मेरा थोड़ा ना इसमें ब्लंट व्यू है कि अगर एंटरप्रेन्योरशिप ही करनी थी तो एमबीए करने क्यों आए, ठीक है। बिकॉज कोई भी एमबीए का जो कॉलेज है वो आपको बिजनेस तो सिखा नहीं रहा, वो कहने की बी स्कूल है, ठीक है। आपको एक मैनेजर बनना सिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप मैनेजर बनना सीखोगे तो आपकी जॉब ही लगेगी, ठीक है। तो वो उनकी तरफ से भी सही है, आप भी तो उनसे गलत सवाल पूछ रहे हो ना, पहली बात, ठीक है। गलत सवाल का हमेशा गलत जवाब ही मिलता है। तो क्या होना चाहिए सही सवाल? ये सवाल होना चाहिए कितने की नौकरी चाहिए भाई तेरे को। आपने लाला जी की बात कही, ओके, एंड मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, मतलब जो पीएचडी की वो ट्रेडिशनल इंडियन बिजनेस कम्युनिटीज़ पे की,
और जब मैं लिटरेचर पढ़ता था तब बहुत बुरा लगता था, क्योंकि ये जो ऑथर्स हैं, वेबर हो, शुम्पिटर हो, मॉरिस हो, बोलते थे कि वन ऑफ द रीजन वाई द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिड नॉट कम टू इंडिया इज बिकॉज दे लैक द प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक, कि उनको एफर्ट और रिवॉर्ड का संबंध नहीं समझ में आता, वो लोग मिस्टिकल बिलीव्स में बिलीव करते हैं। तो हम लोग जो एंटरप्रेन्योरशिप समझते हैं, एटलीस्ट थियोरेटिकली, वो वेस्टर्न कॉन्स्ट्रक्ट है, ये जो सिलिकॉन वैली से आया है, जहाँ से भी। इंडियन धंधा इज क्वाइट डिफरेंट। आई डोंट नो वेदर यू विल एग्री विथ मी और नॉट। सो आप मतलब व्हाट इज द एसेंस ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी इन द वेस्ट? मैंने वेस्ट वाली देखी नहीं है, मैं कभी अरे नहीं देखी भाई, मतलब अब यार मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ, तुम मान नहीं रहे हो। नहीं भाई, मैंने आज तक इंडिया के बाहर कोई कहीं नौकरी नहीं करी, ठीक है। मैंने आज तक इंडिया के बाहर कोई पैसा नहीं कमाया, तो मेरे को पता ही नहीं है व्हाट इज़ देयर टू वर्क इन द यूएस। हमें यूएस गया बहुत हूँ, मैंने फंड रेज बहुत करा है यूएस से, बट मैं एंटरप्रेन्योर के साथ बैठ के मैंने वहाँ पे बैठ के एंटरप्रेन्योरशिप नहीं की है। तो उस हिसाब से आई एम नॉट द राइट पर्सन कि जिससे सवाल पूछा जाए कि यार डिफरेंस क्या है। डिफरेंस वो बता सकता है जो एक कंपनी यूएस में बना के आया हो, फिर उसने एक कंपनी इंडिया में बना ली, तो उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, मेरे को नहीं है। बट इन जनरल मेरे को लगता है कि इंडिया वैसे भी एंटरप्रेन्योर्स की कंट्री है ना। मेजॉरिटी ऑफ लोग अदर देन द एजुकेटेड लोग तो अपना ही धंधा करते हैं, ठीक है। एंड बनिया कम्युनिटी को तो धंधा करना बहुत अच्छी तरीके से आता है, ठीक है। तो मेरे को इन जनरल ये लगता है कि वी डोंट इवन नीड टू लुक टू वेस्ट फॉर कि हमारे को मैनेज, मतलब हम अंग्रेज़ी में पढ़ रहे हैं तो हम वेस्ट को लुक अप टू कर रहे हैं कि ठीक है उनकी किताब भी इंग्लिश में लिखी है तो, और वो थोड़े ज़्यादा डेवलप्ड लग रहे हैं तो हम उनकी बात पढ़ लेते हैं, हम भी डेवलप्ड हो जाएंगे, राइट। बट अदरवाइज ऑन ग्राउंड धंधा करना तो यार सबको आता ही है इंडिया में। लाइक बनिया कम्युनिटी है क्या, ट्रेडर की कम्युनिटी पहले बोली जाती थी, बट इट्स अ बिजनेस कम्युनिटी नाउ, राइट। इट्स नॉट ओनली डूइंग ट्रेडिंग। तो या आई डोंट लुक अप टू वेस्ट इन दैट सेंस। एक्सीलेंट। एक चीज़ जो हम लोग इंडिया में व्यू करते हैं, जो फेलियर को हम, हाउ वी व्यू फेलियर, वी ऑलमोस्ट स्टिग्मेटाइज इट। ये मेरे को भी याद है जब when I thought of coming out of college and thinking of a startup, तो everybody used to look like कि इसको और कुछ नहीं मिला इसलिए ये कर रहा है, because he is basically a failure. ये कल्चरल बैरियर हो गया क्या हमारे कंट्री में? नहीं यार, बहुत बड़ा बैरियर है। सी इंडिया में सबको ना जजमेंट पास करनी है, ठीक है, दूसरे बंदे पे, खुद पे कोई नहीं जजमेंट पास करता। तो एंड लोगों को ना थोड़ा दूसरे को पीछे खींचने में भी बहुत मज़ा आता है, ठीक है। थोड़ा सा क्रैप मेंटालिटी है इन दैट सेंस। तो हाँ यार, लोग बोलते हैं कि नहीं चला इसका काम नहीं चल रहा, फेल हो गया, प्रोडक्ट फेल हो गया, राइट। बट मेरे को लगता है यार वो आपको बोलने की औकात तब होनी चाहिए जब आपने वो ट्राई करा हो जो उस बंदे ने ट्राई करा है, ठीक है। आप एक अच्छी मंथली पेइंग सैलरी लेते हुए जब आपने कभी लाइफ में एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई नहीं करा, आप ये जजमेंट नहीं पास कर सकते दूसरे बंदे को, देख इसका बिजनेस फेल हो गया, ये ऐसे कर रहा था वैसे कर रहा था, मैं होता था वैसे कर लेता। भाई कर लेता फिर तू, ठीक है। किसने रोका था, मतलब पंडित जी ने मुहूर्त निकालना था। तो दैट इज़ अ फैक्ट, पीपल इन इंडिया पास जजमेंट। एंड यार फेलियर ना बोरिंग होता है, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, फेलियर बोरिंग होता है, राइट। वो मायूस सी शक्ल होती है, उसकी अच्छी गाड़ी भी नहीं होती, अच्छा घर भी नहीं होता, फैंसी भी नहीं होता वो, ठीक है। तो एंड लोगों को यही देखना है, वो सक्सेस जब लोग देखते हैं उनको तो सक्सेस का आउटकम देखना है ना, उस सक्सेस का हार्ड वर्क थोड़ा देखना है। कई बार सक्सेस में ज़्यादा पेन होता है दैन फेलियर, राइट। बट लोग तब भी उसी से अट्रैक्ट होंगे। तो बट वो ह्यूमन नेचर है यार, मतलब एंड इट इज़ गुड ऑल्सो ना। आपको एस्पिरेशनल चीज़ें देखनी है, आपको धर्मात्मा नहीं बनना कि नहीं जो फेल हो गया मैं उसको स्टडी करूँगा, मैं देखूँगा क्या गलत हो गया। लोग वही बोलते हैं यार जो चल रहा है, जो सक्सेसफुल हुआ उसको देखो, वहाँ से सीखो, राइट। एंड आई जेन्युइनली टेल यू, फेलियर टीचेज यू नथिंग। वो ना बहुत लोग ज्ञान देते हैं मैं फेल हो गया बट मैंने बहुत कुछ सीख लिया। अब 1 घंटा सीख लिया तूने। मतलब
इन माई फेजेज ऑफ फेलियर आई हैव लर्नड नथिंग, जीरो, राइट. ठीक है, मतलब फ्री टाइम मिल जाता है, आप नेटफ्लिक्स देख लो जितनी सीरीज देखनी है तो आपको आपकी सीरीज कवर हो जाएंगी, कुछ ज्ञान नहीं आने वाला. So, you know, this fearlessness that you have, okay, to speak your mind. And वो आपका बुक भी जब मैंने पढ़ा तब मेरे को एक चीज़ उसमें स्टैंड आउट लगी कि you wanted to show the true picture of entrepreneurship. कि this is not some, you know, एक heroic entrepreneur का जो पिक्चर हम लोग देखते हैं कि you know, it's all glittery and it's all very nice. आपने हार्ड फैक्ट्स बताए उस बुक में. परसीवरेंस का मतलब आपने समझाया एंड उसका इम्पोर्टेंस भी समझाया. आपको एंड यू ऑल्सो सेड इन वन ऑफ योर इंटरव्यूज दैट यू नो कि ये जो सेटअप से हम लोग जाते हैं, जो इंजीनियरिंग करो, बी स्कूल में जाओ, उसमें कंप्लेसेंसी आती है. तो हाउ डू वी इंस्टिल दैट कि फियरलेसनेस एंड परसीवरेंस वो हम लोग पढ़ा तो नहीं सकते, वो तो बंदे में होना चाहिए वो कीड़ा. तो हाउ डिड यू डेवलप इट? पता नहीं यार कब डेवलप हुई, बट मतलब मेरे को एक ही बात बताया कि मैं फट्टू तो कभी भी नहीं था, ठीक है. मेरी फटती नहीं थी किसी चीज़ से. बट सी द थिंग इज, आप इंडिया में ना मोस्टली एजुकेटेड लोग मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं. वो लोअर मिडिल क्लास होंगे, अपर मिडिल क्लास होंगे, वो आप डिफाइन करते रहो अपनी डेफिनेशन से, बट मोस्ट लोग मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है. और एजुकेशन इज देयर पासपोर्ट टू अ बेटर लाइफ, ठीक है. तो ना पर मिडिल क्लास ना एक बैंड में खेलता है, ठीक है. वो इतनी मेहनत करना चाहता है कि वो अपर मिडिल क्लास रहे, ठीक है, बट इतना रिस्क नहीं लेना चाहता कि वो मिडिल क्लास से नीचे चला जाए, ठीक है. तो उसकी एक बैंड है. एक सिंपल चीज़ होती है ना, रिस्क रिवॉर्ड. आपने बोला भाई जितना रिस्क लोगे उतना रिवॉर्ड मिलेगा, सबको पता है. सारी मतलब what is beta in the market, that's what beta in the market is, right? How much risk are you taking and उसके हिसाब से रिवॉर्ड मिलेगा. बट एजुकेशन सिस्टम क्या सिखा रहा है कि बहुत रिस्क मत लो, ठीक है भाई, मत लो रिस्क, फिर रिवॉर्ड भी उतना ही कैप हो गया ना. इफ देर इज फ्लोर देर इज सीलिंग, इफ देर इज नो फ्लोर देन देर इज नो सीलिंग, ठीक है. तो कहीं पे एजुकेशन सिस्टम ही आपको फट्टू बना रहा है. एंड दूसरा क्या है कि एजुकेशन भी महंगी होती जा रही है. तो अब अगर आप पहले के ज़माने के देखो, लाइक माय फादर, यू नो, उन्होंने पूरी एजुकेशन में इंक्लूडिंग सीए इतने पैसे खर्चे होंगे जितने मैंने स्कूल में खर्च दिए होंगे, या स्कूल मतलब 5वीं क्लास तक खर्च दिए होंगे, ठीक है. मैंने पूरी एजुकेशन में इतने पैसे खर्चे जितना मेरा बेटा अब 1 क्लास में खर्च देता है, ठीक है. तो आपकी इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन बढ़ती जा रही है, और क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन बढ़ती जा रही है तो आपको ये लगता है यार कि अब तो ये रिकवर करनी पड़ेगी, ठीक है. तो पहले मेरे को लगता है पुराने ज़माने में लोग ना ज़्यादा फेयरलेस थे. उनको था ठीक है यार, मैं सरकारी स्कूल गया, सरकारी कॉलेज गया, मैंने डीयू की फ़ीस दी कितनी, 10-15 हज़ार रुपये, आज की डेट में भी इतनी है शायद. तो जब आपका एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट कम होता है ना, आप में फियरलेसनेस आ जाती है. मेरे को रिटर्न बना के नहीं देना, मेरा कुछ अंदर घुसा ही नहीं हुआ एज एन इन्वेस्टमेंट कि मेरे को अभी इमीडिएटली रिटर्न बनाना है. आई थिंक समवेयर टू मच एम्फेसिस ऑन द एजुकेशन, टू मच इन्वेस्टमेंट इनटू एजुकेशन इज मेकिंग अस फेयरफुल कि अगर मैंने ये रिकवर नहीं करा तो क्या होगा, ठीक है, और मेरे को कितने साल लग जाएंगे एजुकेशन को पैसे रिकवर करने में. थैंकफुली मैं जस्ट उस बैच में निकला था जब मैंने IIM की 2 साल की फ़ीस 2 लाख रुपए थी शायद, 2 या 2.5 लाख ऐसी कुछ थी, ठीक है. एंड वो भी मैंने अपनी स्कॉलरशिप से कमा के फ्रांस से दे दी थी पूरी. तो मेरे पैसे ही नहीं लगे थे एजुकेशन में, ठीक है. तो इसलिए मेरी फटती नहीं है. मेरे को लगता है ठीक है यार, IIT IIM कर लिया, बट पैसे तो कुछ लगे नहीं, तो फ्री का करा है. अब फ्री का करा तो मैं अपसाइड पे खेलूँगा ना. तो या You went to IIM Ahmedabad, right? The cream, de la cream as they call it in India. आपके entrepreneurial journey में, मतलब I get your point from where you're coming towards what is being taught in B school. But IIM Ahmedabad में आपने क्या सीखा जो आपको entrepreneurial journey में काम आया? And because I'm asking this question very candidly because see we also need to evolve. So what's your thought on that? यार IIM Ahmedabad ना मेरे लिए एक ब्लर है.
पर मैंने आईएम से बहुत कुछ सीख लिया. जैसे मेरे को पता लग गया साले सबको नौकरी करनी है, ठीक है, तो इन सबको सालों को मैं ही नौकरी पे रखूँगा. मतलब why do you want to compete with people when you can make them work for you? ठीक है. तो एंड एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ नहीं सिखाते. मतलब एटलीस्ट आपको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, आई एम सेइंग स्टेपिंग आउट ऑफ कॉलेज एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, कि भाई मैं लास्ट ईयर तक इतना जिगरा डेवलप कर लूँ या मैं इतनी स्किल डेवलप कर लूँ कि मैं जिस साल निकलूँगा उस साल मैं नौकरी नहीं लूँगा, उस साल मैं एंटरप्रेन्योर बनूँगा. ऐसा तो कुछ भी नहीं सिखाते. कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ दैट. एंड या बाकी ठीक है यार, मतलब बेसिक फंडे सीख लिए, फाइनेंस सीख लिया, मार्केटिंग सीख लिया, पैसे कमा लिए. तो अच्छी जगह नौकरी लग गई तो पहले 9 साल पैसे ढंग के कमा लिए. और वो नौकरी ढंग की जगह लगी तो एक्सपोजर अच्छा मिल गया, ठीक है, टू बिग नंबर्स टू स्टार्ट विद. एंड आई कंप्लीटली फील कि हर बंदे के पास ना 24 घंटे ही हैं. आप दुकान चला लो या कंग्लोमरेट चला लो, 24 घंटे ही हैं, ठीक है. तो मैं जब आईएम से गया, मेरी कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जॉब लगी, तो मेरी पहली डील जो थी वो $400 मिलियन की थी उस टाइम पे, ठीक है. 400 मिलियन उस टाइम 40 का एक्सचेंज रेट था डॉलर का. तो 1600 करोड़ रुपए कैश की डील की थी मैंने पहली, ठीक है, विच वॉज सेलिंग ऑफ एंकर इलेक्ट्रिकल्स टू पैनासोनिक. एंड होता क्या है कि एक बार आप एक बड़ी चीज़ कर लो ना, फिर आपका वो टैग लग जाता है. तो मेरे को सब बोलते थे ये बिग डील का है, ठीक है. तो बोलता हाँ जी मैं हूँ बिग डील का है. मतलब तुमने मार्केटिंग करी है तो कर लो, ठीक है. सो देन यू स्टार्ट थिंकिंग बिग. यू ऑलवेज वांट टू प्ले द बिग गेम. एक बार आपको बड़े नंबर समझ आने लगते हैं ना, आपको बड़ी गेम समझ आने लगते हैं. सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई गॉट आउट ऑफ आई एम अहमदाबाद. बट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट एंटरप्रेन्योर बनाने के कुछ नहीं है. मतलब इट्स लाइक एनी अदर बी स्कूल. मतलब आपको नहीं बना रहे हैं, वो आपको आउट ऑफ द गेट एंटरप्रेन्योर नहीं बना रहे हैं. So you had your corporate career, you came into Grofers. Now you're in your third unicorn, right? Third unicorn stage. एक मैंने आपका statement पढ़ा, वो बहुत interesting लगा मुझे. You said no VC CCs. Why? मतलब भाई क्या आप न्यूज़ नहीं पढ़ते क्या? मतलब मेरे पंगे चलते हैं तो उनके साथ. Because you completely bootstrapped it, I guess. नो. सो मैं उसका थोड़ा क्लैरिफिकेशन देता हूँ, क्योंकि अभी मेरे को सब कुछ लोग बोलते हैं कि आपने बोला आप बूटस्ट्रैप करोगे, फिर आपने पैसे क्यों उठाए, ठीक है. तो सी आई वॉज वेरी वेरी क्लियर दैट व्हेन आई एंड इवन इफ यू रीड माई बुक, आई थिंक द फंडामेंटल मिस्टेक आई मेड वॉज आई डाइल्यूटेड टू मच while building Bharat Pay, because I was in a hurry to make something big. And in trying to make something big, I was okay being creating a big pond and being a small fish in that. Saying कि ठीक है यार, मेरे पास 8-10% इक्विटी है, आई एम ओके टेकिंग द 90% ऑन माई बैक, एंड मैं भागूंगा और मैं अपने 10% के लिए बना के जाऊंगा धंधा, ठीक है. बट आफ्टर वॉट ऑल दैट ट्रांसपायर्ड, right, it clearly dawned on me कि you have to be in control, right. 51%, 75%, इससे ऊपर आपके पास इक्विटी होनी चाहिए कि, और इतना ही पैसा रेस करो यार, ठीक है, काम चलता रहे, बट किसी की सुननी ना पड़े, ठीक है. एंड इट्स बिकॉज समवेयर आई फेल्ट कि जो इन्वेस्टर है ना उसको विजन ही नहीं है. आप जो बनाना चाहते हो, आप तो खुद को डाइल्यूट करके भी वो बनाने को तैयार हो, बट जो 90% कंपनी लेके बैठा है उसमें विजन ही नहीं है, उसमें वो सेम जिगरा ही नहीं है, पैशन ही नहीं है कि जब मार्केट की फटेगी उसकी बुरी तरह फट जाएगी, ठीक है, उसके हाथ पांव फूल जाएंगे एंड ही विल स्टार्ट डूइंग स्टूपिड थिंग्स, ठीक है. तो मेरे को इसलिए अब रियलाइजेशन होगी कि एज अ फाउंडर, एज अ लाला, यू शुड ओन मेजॉरिटी at all points of time. Now coming to bootstrapped, I am still bootstrapped, ठीक है. मेरा प्रोडक्ट रेडी है, मेरी कंपनी रेडी है, मेरी टीम रेडी है, मैंने एक पैसा बाहर का नहीं खर्चा, ठीक है. हाँ, जो करने वाला हूँ वो ड्रास्टिक है, उसकी टाइमिंग के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू स्पेंड मनी नाउ, राइट. डजेंट मीन आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट प्रॉफिटेबल, इट इज़ गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल, राइट. पैसा मैंने जो अभी उठाया है बहुत छोटा उठाया है,
लिटरली फ्रेंड्स एंड फैमिली से उठाया है, ठीक है, एंड सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस के लिए उठाया है, क्योंकि मैं जो पंगा ले रहा हूँ वहाँ पे लोगों के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, ठीक है, तो मैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं उठा रहा या मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी नहीं उठा रहा, हाँ, बट इतना उठा रहा हूँ कि पंगा लूँ तो ढंग से लूँ, क्रेडिबल पंगा लूँ, राइट. सो या आई हैव जस्ट रेज्ड absolutely appropriate amount of capital. It's friends and family capital. No VC there. ठीक है. प्रेस वालों को जो छापना है छापने दो, बेवकूफ़ है एक नंबर के. उन्होंने स्पेलिंग भी गलत लिखी आधी चीज़ों की, ठीक है. और मैं सोचता रहता हूँ यार, प्रेस वालों को एक काम है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, वो तो ढंग से कर लो. वो भी ना होता उनसे. तो या दैट एंड आई स्टिल बिलीव कि आई डोंट वांट टू डाइल्यूट मोर. I still own 80% of my company. I think, if I ask most of these people what do they binge on, one thing they would say is Shark Tank. And you're one of their favorites, clear favorites. I think the reception that speaks a lot. Or one question that they wanted me to ask, the E-Cell, was that, what is that one thing? एक वो क्या चीज़ है जो आप पिच में मतलब बहुत एसेंशियल मानते हो कि that one thing is very important in your pitch, वो क्या है? यार बंदे में जिद होनी चाहिए, ठीक है. मतलब आप ना जो बड़ा एंटरप्रेन्योर बनेगा ना, वो बाय डेफिनेशन थोड़ा संकित होएगा, क्योंकि उसको मार्केट में वो दिख रहा है जो किसी और को नहीं दिख रहा है, और मार्केट में सब बोल रहे हैं यार तू बेवकूफ़ है, तू ये क्यों कर रहा है, ठीक है. बट उस बंदे में जिद होनी चाहिए कि नहीं यार, मेरे को क्लियरली दिख रहा है मैं क्या बना रहा हूँ और ये चलेगा, ठीक है. चाहे आपको आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली डिस्करेज करें, चाहे आपको इन्वेस्टर नकार दे कि ये बकवास है, या 10 लोग बोलते हैं, आप में वो जिद होनी बहुत ज़रूरी है. तो मैं तो जिद ही देखता हूँ फाउंडर में. बाकी धंधा तो ठीक है यार, मतलब आप पहला प्रोडक्ट क्या निकालते हो, 6 महीने बाद प्रोडक्ट क्या होता है, उसके 6 महीने बाद प्रोडक्ट क्या होता है, आपको खुद ही याद नहीं रहता, इतनी शक्ल बदलता है बिजनेस. बट अगर आप में जिद है कि नहीं मेरे को सक्सेसफुल होना और मेरे को चलाना ही है, तो आप मार्केट के साथ मार्केट का फीडबैक लेके चेंज भी कर लोगे अपने आप को इमीडिएटली. सो फॉर मी इट इज़ ऑलवेज द फाउंडर. एक चीज़ आपने और बुक में लिखी है जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस खुद के जानना बहुत ज़रूरी है. आई समटाइम्स फील कि मैं खुद भी और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी sometimes we are in denial about our weaknesses. We don't want to accept that. How do we go about that? Because that is clearly not going to help us become the better versions, right? And what is required for a successful startup. What would you say to that? Again, वो भी सोसाइटल है यार. मतलब आप अगर सोसाइटी में देखो, अगर कोई बंदा बोल दे यार मेरे से ये काम नहीं हो रहा, मेरे को नहीं आता, आपकी उसकी क्या परसेप्शन होती है? आप ये बोलते हो फुद्दू है यार ये, ठीक है, इसको ये काम नहीं आता, ठीक है. तो सोसाइटी में एक्सेप्टेंस ही कम है ना, कि अगर कोई ऑनेस्ट है अपनी पोजीशन को लेके कि ठीक है मेरे को ये काम आता है ये नहीं आता, ठीक है, तो लोग उसमें कमियां निकालने लगते हैं रादर देन अप्रिशिएट द फैक्ट कि हाँ ठीक है ऑनेस्टली बोल रहा है यार, इसकी क्या स्किल है और क्या नहीं है. एंड पूरे एजुकेशन सिस्टम में वही सिखाया जाता है बॉस कि अपने आप को अपसेल करो, अपने आप को एक्सपोज मत करो, अगर तुम्हारी कोई वीकनेस भी है तो चुप होके बैठ जाओ, विच मे बी वर्क्स इफ यू जस्ट वांट टू फ्लोट, बट इफ यू वांट टू रियली एक्सेल एंड फाइट विद द मार्केट से ज़्यादा ऑनेस्ट कोई चीज़ ही नहीं है. आपके प्रोडक्ट में दम है या नहीं है वो कस्टमर बताएगा. कस्टमर को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता आप कहाँ से आए हो, आपने क्या पढ़ाई करी है, किसका पैसा लगा हुआ है, आप कितना परसेंटेज ऑफ द कंपनी ओन करते हो. कस्टमर को घंटा कुछ लेना देना नहीं है. कोक प्रोडक्ट है, मैं पीता हूँ, मेरे को अच्छी लगती है, दैट इज़ द फैक्ट ऑफ लाइफ, ठीक है. तो कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट से वैल्यू लेनी है एंड कस्टमर आपको बहुत ऑनेस्ट फीडबैक देगा. अगर आपको ये बात समझ आ गई ना, देन यू विल स्टार्ट बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. सो फॉर बीइंग अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर यू हैव टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट विद योरसेल्फ. मतलब खुद से मक्कारी कहीं नहीं लेके जाने वाली, क्योंकि आपको पैसा कस्टमर से कमाना है. खुद को तो तनख्वाह नहीं देने वाले आप, कोई और भी आपको तनख्वाह नहीं देने वाला. सो दैट्स माय व्यू कि अगर आपको जेन्युइनली बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है,
आपको ब्रूटली ऑनेस्ट होना पड़ेगा. नॉट सेइंग कि सेल्फ डेप्रिकेटिंग हो जाओ, खुद का मजाक मत उड़ाओ, राइट. बट एटलीस्ट जब खुद से बात कर रहे हो, जब आप एक शांति में बैठे हो, यू आर स्पीकिंग टू योर सेल्फ, तब अपनी जो इनर वॉइस आ रही है ना, जो तुमको बता रही है यार ये नहीं हो रहा है, या यहाँ पे फंस रहा है, या मज़ा नहीं आ रहा, उसको मत दबाओ. No, thank you for that. With that, we have limited time, so we have to come to Q&A, and I'm sure there are a lot of people who would like to ask a lot of questions, but we have time for 2 or 3 maybe. So if anybody would like to ask questions, the team can hand over the mic to them, and you can fire away. 2-3 क्यों और क्वेश्चन पूछ ले यार, ऐसी क्या बात है. Yeah, there you go. We have 4-5 शायद. Any question? Please raise your hand and probably stand up, because it'll be very difficult to know otherwise who is asking the question. Hello. So these days, most of the entrepreneurs are turning into an influencer. Like I see a lot of similarities between you and Ankur Warikoo. Like he also started his Instagram famous thing also, right? So what is it like at some point, after some point, like entrepreneurs think that being famous is important or something like that? मतलब इससे ज़्यादा ऑफेंसिव स्टेटमेंट मैंने आज तक नहीं सुने हैं. Because मतलब मैं इतना ऑफेंड हो गया कि मैं सोच रहा हूँ उठ के चले जाता हूँ साला भी. भाई अंकुर वारिकोर मेरा नाम एक सेंटेंस में नहीं लेना है. मेरा एक ही रूल है बस, और कुछ नहीं है. कुछ भी बोल दें, माँ बहन की गाली दे दो, कुछ नहीं बोलूँगा. अंकुर वारिकोर नहीं बोलना है. Yeah, can we have the next question? Now coming to the good part of your question, right? All good parts are non-Warikoo parts, right? मैं रील बना रहा हूँ, तू क्यों देख रहा है? समझ भाई, तेरे पास भी कैमरा है, फ़ोन है, मेरे पास भी फ़ोन है, ठीक है. तू भी रील बना सकता है, मैं भी रील बना सकता हूँ. एंड ऑफ द डे व्यू ये है कि जनता देख क्यों रही है, क्वेश्चन वो है, ठीक है. आप इन्फ्लुएंसर बन गए, हाँ बन गया मैं इन्फ्लुएंसर. भाई मेरा तो सिंपल है, मैं तो हर चीज़ में घुस जाता हूँ, ठीक है. और मतलब हर चीज़ में घुस के हर जगह रायता फैलाता हूँ, ठीक है. अब मेरे एक रील के 2.25 करोड़ व्यूज़ आ रहे हैं. 2.25 करोड़ व्यूज़, समझ रहा है तू, इंस्टाग्राम पे. कितना बोलते हैं उसको, 22.5 मिलियन व्यूज, ठीक है. तो भाई मैं बनाऊंगा रील क्यों, और क्यों नहीं बनाऊंगा. एंड एक चीज बता दूं, ये जो जितना इन्फ्लुएंसर आज की डेट में कमा रहे हैं ना, तुमको असली में पता लग गया ना, तुम रो दोगे, ठीक है. मतलब तुम बोलोगे साले ये मस्ती भी कर रहे हैं, आधा टाइम वेलीपंथी करते हैं, कैमरा के आगे आके भी वेलापंथी करते हैं, और साले हमारे से 10 गुना कमा के जाते हैं, ठीक है. सो सी आई थिंक इन टुडेज टाइम यू हैव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रिएटिंग अ पर्सनल ब्रांड. पहले क्या था जी, यशराज जी के पास कैमरा है और यशराज जी ने कास्टिंग करनी है, जो उनके कैमरा के सामने आ गया वो हीरो है, ठीक है. अब भाई साहब सबके पास कैमरा है, काय का यशराज, ठीक है. और किसी को थिएटर जाना ही नहीं है, ठीक है. मतलब थिएटर भरना मुश्किल हो रहा है. सब बोल रहे हैं भाई मैं घर बैठा हूँ, ऑफिस बैठा हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ, जब मेरा मन करेगा मेरे को एंटरटेनमेंट चाहिए, मैं तो एंटरटेनमेंट लूँगा. नाउ वी आर एट दैट कस्प पॉइंट. सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन कटिंग अक्रॉस सेगमेंट्स टू बिकम पब्लिक एंड टू बिकम फेमस. एंड आपको वो अपॉर्चुनिटी आपको एज अ ब्रांड यूज़ करनी है. अब मैं तेरे को अपना जेन्युइन बताता हूँ, ठीक है. मैं शार्क टैंक नहीं कर रहा, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी पॉपुलैरिटी तो ऑल टाइम हाई पे है. क्यों है? क्योंकि मेरे पास एक मीडियम है जिससे मैं कंज्यूमर के सामने जा सकता हूँ, विच इज़ द फ़ोन. मेरे को शो चाहिए नहीं आज की डेट में, ठीक है. पीपल आर कंज्यूमिंग मोर ऑफ मी ऑन सोशल मीडिया दैन दे एवर कंज्यूम मी ऑन टीवी, ठीक है. तो आपको अपना ब्रांड कैसे यूज़ करना है, मार्केट में क्या चल रहा है, ये बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है. और मैं तो कभी इसको डेरोगेटरी सोचता ही नहीं. लोग बोलते हैं यार तू इन्फ्लुएंसर हो गया, लोगों का ना अंडरटोन होता है तू वेला हो गया.
सच्ची बात बोलो ना, तुम जब किसी को इन्फ्लुएंसर बोलते हो ना, अंडर करंट है भाई तू वेला है, ठीक है भाई। मैं पिछले साल एज एन इन्फ्लुएंसर इतना पैसा कमाया ना, मैंने साला MBA, बैंक, स्टार्टअप कभी कहीं इतना पैसा नहीं कमाया, ठीक है। तो तेरे को जो समझना है समझ ले, मेरे को तो बहुत मजा आता है। Yeah. You never realize what hit you, right? Yeah. आधे घंटे से यही हो रहा है मेरे साथ भी. Next question, please. Next question. Hello, sir. So my question to you is, you told that India में already startup culture है, already entrepreneurs है, and we don't need to look to the West for entrepreneurship. So do you believe कि अभी even the street vendors are sort of entrepreneurs here? So do you believe कि it is enough right now, or do you have any vision for them as well, or you know, you have some idea कि कैसे we can you know, build this startup culture in India? You know, like, scalability की जो issue है वो. बहुत ही MBA वाला क्वेश्चन है। नहीं, मेरा क्या विजन है भाई, मतलब भाई देखो, मैं तुमको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं अभी नेता तो बना नहीं, ठीक है, मतलब आई एम ऑन द पाथ। आई एम स्टिल नॉट देयर, राइट। आई एम लाइक, मैं क्या बोल रहा था, ये इन्फ्लुएंसर बनाओ अभी तक, हाँ ठीक है, नेता बनने में टाइम है। बट मेरा तो एक ही विजन है यार, मेरे को अपना काम करना है, ठीक है, और मेरे को इंडिविजुअली बिलियनियर बनना है, मेरा ये विजन है। वो अगर अपना काम तुम इतना बड़ा बना लो कि तुम इंडिविजुअली बिलियनियर बन जाओ, तुमने इनफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर लिया, इनफ लोगों को इंस्पायर कर दिया टू बिकम एंटरप्रेन्योर, राइट। बट यू ऑलवेज हैव टू बी सेल्फिश इन योर इन व्हाट यू वांट टू डू, राइट। मैं यहाँ पे आके बाबा जी वाला ज्ञान दे दूँ, जी नहीं मेरे को देश को आगे लेके जाना है, ठीक है, वो लेके जा रहे हैं जो अंकल लगे हुए हैं वो, ठीक है। मेरे को नहीं मतलब मेरे को उन वो जहाँ पे देश को आगे लेके जा रहे हैं, मेरे को उसमें थोड़ा सा और आगे निकलना है, ठीक है, फ्रॉम द अदर्स। बट या एज अ बिजनेसमैन आई वांट टू डू बिजनेस यार, आई वांट टू अर्न मनी, राइट, आई वांट टू हैव गुड थिंग्स इन लाइफ, सिंपल। Thank you. Next question. Sir, with your permission, थोड़ा non-mainstream question पूछना चाहूँगा. I've read a lot of entrepreneurs like playing poker because इसमें risk management, bias-free thinking जैसे elements है which applies to business as well. Is this true? And if it is, could you talk about the parallels between business and poker? यार मैं ना 3 पत्ती वाला बंदा हूँ, ठीक है। अरे फैक्ट है वो, दिल्ली में क्या है कि मैं पंजू फैमिली से आता हूँ, तो दिवाली के टाइम ना बहुत ताश खेलते थे, मतलब 15 अगस्त से लेके दिवाली तक हर वीकेंड पे ताश होती थी, और पैसे वाली, और 3 पत्ती खेलते थे। तो मेरे को 3 पत्ती की सारी वेरिएशन पता है, ठीक है। फिर जब मैं फाउंडर बना ना, तब मेरे को पता लगा यार ये ना थोड़े इंटेलेक्चुअल फाउंडर्स बैठ के पोकर खेलते हैं, और मेरे को समझ ही नहीं आती थी गेम, ठीक है, क्योंकि साला 3 पत्ती में 3 पत्ते होते हैं, 5 पत्ते होते हैं, खेल ही नहीं कभी ज़िंदगी में, तो समझ ही नहीं आती थी। फिर एक दिन क्या हुआ, एक इन्वेस्टर ने ना दिवाली पार्टी रखी, तो मैंने बोला आज तो पोकर खेलेंगे, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो वहाँ पे सब धुरंधर फाउंडर बैठे हुए हैं, पोकर चैम्पियन जी, हम तो इतने लाख जीते, हम उतने लाख जीते, ठीक है जी। तो मैं खेलने बैठा, तो किसी को लगा कि साला ये तो पहली गेम खेल रहा है, ठीक है। पहली गेम में मेरे को बोलता ऑल इन, ठीक है। मैंने बोला हाँ जी ऑल इन दो। भाई साहब मैं 2 लोगों को ऑल आउट करा के आया हूँ उस दिन, ठीक है। तो कोई रिलेशन नहीं है ये, बस Thank you, sir. ये कूल बनने के तरीके हैं कि देखो हम तो पोकर खेलते हैं, मतलब तुम 3 पत्ती पे अटके हो अभी तक। हाँ। Next question, please.
हेलो सर, आपका फ्री स्पीच पे क्या स्टैंड है बेसिकली? कि फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट स्टैंड है या कहाँ पे लाइन ड्रॉ होनी चाहिए बेसिकली? कहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं चाहिए? तेरे को क्या लगता है मेरा क्या व्यू है? नहीं नहीं, एब्सोल्यूटिस्ट ही दिखता है आपका तो, बट फिर भी जैसे एक बात ये आ जाती है ना कि कुछ एक लेवल है क्या कि जहाँ पे मतलब वो पोलाइटनेस होनी चाहिए थोड़ी, या बिल्कुल ही ब्रूटली ऑनेस्ट होना चाहिए? पता नहीं यार, मेरी लाइन तो माँ बहन पे ड्रॉ होती है बेटे। क्या पोलाइटनेस वर्ड से नहीं है ना, पोलाइटनेस इंटेंट से है, ठीक है? अब मैं तेरे को बहुत मतलब प्यार से कुछ बोल दूं और तेरी ले लूं, ठीक है? फिर तू बोलेगा कि हाँ बहुत बड़ा अच्छा आदमी है यार, कितना मीठा बोलता है, ठीक है? फिर तेरे को 3 दिन बाद तू गाली देगा, साले ये बोल के गया मेरे को, ठीक है? मेरा ना थोड़ा व्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भाई तेरे को बुरा लगे या अच्छा लगे वो तेरा रिएक्शन है, ठीक है? मैं तो तेरे से सीधी लॉजिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो मेरे एटलीस्ट मेरे दिमाग में कोई मतलब स्पीच का वो नहीं है। मतलब मैं ऐसी जगह ऐसी बातें करके आऊँ ना, उसके बाद तो तेरा विश्वास उठ जाएगा भाई ये फ्री स्पीच होती भी क्या है। एंड सर, थोड़ा सा एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्या आप मतलब अपने पर्सनल इसकी वजह से ही फ्री स्पीच वाली चीज़ें हैं, या आप एक कोई मतलब ये भी चाह रहे हैं कि इंडिया में एक कल्चर प्रमोट हो ऐसा डायरेक्ट बोलने वाला? नहीं, मेरे चाहने से क्या होता है? नहीं मतलब एक मूवमेंट एक हमें बनता हुआ दिख रहा हो कुछ कि थोड़ा नहीं यार, मेरे को अरे यार पूछ रहे ढंग का क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसी बात नहीं है। देख मेरे को लगता है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस का कल्चर तो आ ही रहा है, स्पेशली विद यंगर जनरेशन, राइट? हमको ना पॉलिटिकली करेक्ट लोग थोड़े कम पसंद आने लग गए हैं। लोगों को कंसिस्टेंसी चाहिए कि जो बोल रहा है वही कर रहा है, वही है, ठीक है? ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब ना लोगों को बहलाना फुसलाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको इतनी सारी चीज़ों का एक्सपोजर है एंड सोशल मीडिया आपको इतनी सारी चीज़ों को एक्सपोज करता है, तो लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें ही पसंद आ रही हैं इन जनरल, जो मेरे को लगता है। Yeah. Next question. हाय मिस्टर ग्रोवर, आप ही की स्पीच का अगर मैं एक पार्ट उठाऊं कि हम जब पढ़ के हम अपनी पढ़ाई पे जितना खर्चा करते हैं, वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ टू गेटिंग ROI आउट ऑफ इट, कि ठीक है कहीं नौकरी शुरू करते हैं, पहले ROI जनरेट करते हैं, फिर अपना धंधा बनाएंगे। सो वाइल डूइंग दैट जॉब वी स्टार्ट सेटलिंग डाउन कि कंफर्ट जोन में आ गए हैं, एंड वी फॉरगेट अबाउट दैट किक कि हाँ हमें एंटरप्रेन्योर बनना है। एंड हाउ टू गेट दैट किक? नहीं यार, हमारा वो ड्रीम था। मेनी टाइम्स वी थिंक अरे यार ठीक है ना, अपनी फैमिली चल रही है, सब कुछ चल रहा है, सो वो किक कैसे मिले कि यस वी कैन गो टू आवर अल्टीमेट एम? यार बहुत ही लीनियर लाइव्स हैं सबकी। मतलब क्लास में फर्स्ट आओ, फिर JEE फोड़ दो, फिर कैट फोड़ दो, फिर जॉब में सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट ले लो। मतलब बहुत ही लीनियर ग्राफ बनाया गया है। बिजनेस इज़ ऑल अबाउट हैंडलिंग अनसर्टेनिटी, राइट? तो मैं तो सबको सिंपल यही बोलता हूँ, भाई अगर तुम्हारे में 6 महीने बिना सैलरी कमाए बैठने का जिगरा है तो तुम एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हारे पास विजन है अभी भी एंटरप्रेन्योर बनने का, बट जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि बॉस मैं 6 महीने नहीं कमा रहा कुछ, ठीक है? डज दैट फंडामेंटली मेक यू अनकंफर्टेबल, और डू यू थिंक यू कैन लिव विद दैट इन दैट स्पेस? तो वो तो सैनिटी फैक्टर है। तनख्वाह तो आई कीप सेइंग इट्स अ ड्रग, यू नो। पहली तारीख को आ जाएगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, 30 तारीख तक ख़त्म हो जाएगी, आपको बहुत बुरा लगेगा, ठीक है? बट फिर से पहली को आ जाएगी, फिर आपका वो ग्लूकोज चढ़ जाता है, ठीक है? तो या जस्ट गेट आउट ऑफ दैट माइंडसेट यार। मतलब इतना क्या खोने को यार। मतलब मेरे को ये समझ नहीं आता कि यार इतना पढ़ लिखने के बाद भी, तुम्हारे दिमाग में इतने स्टड होने के बाद भी, अगर तुमको लगता है कि तुम 6 महीने मार्केट से बाहर चले गए तो मार्केट में एंट्री नहीं मिलेगी, इतना
मतलब इतना क्या डर है, फिर तो खुद की कैपेबिलिटी पे कॉन्फिडेंस नहीं है ना कहीं पे। ठीक है, बोल दो मैं बाहर जाओ, आप कोई बंदा बोलता है जी मैं 6 महीने सर्फिंग करने चला गया भाई, उसका मन कर रहा था सर्फिंग करने का, 6 महीने चला गया। ठीक है, उसको ये कॉन्फिडेंस होता है मैं वापस आऊँगा, मेरी स्किल आउटडेटेड नहीं है, मेरे को नौकरी मिल जाएगी। इंडिया में आप किसी की सीवी में 6 महीने का गैप देख लो ना, तो ऐसे हो जाता है कि मतलब ये तो ब्लैक लिस्ट हो गया बंदा। अब तो ये पूरी जिंदगी यही समझाएगा कि मैं 6 महीने कर क्या रहा था बट वो है नहीं। जो जेन्युइन बंदे को काम के लिए नौकरी पे रखते हैं ना, उनको सब समझ आता है यार, ठीक है 6 महीने का ब्रेक लिया तो क्या हुआ, अभी बंदे में दम है या नहीं है, बात सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। Yeah. Do we have any more questions? हेलो, गुड इवनिंग सर। तो जैसे अभी एक न्यूज़ आई थी कि यू आर एंटरिंग इनटू फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म क्रिक पे, और हमें एमबीए में सिखाते हैं लाइक फ्रेमवर्क है पोर्टरफाइस वजह, जिसमें हम देखते हैं लाइक कम्पिटिटिवनेस कितनी है मार्केट में और मार्केट कितना कम्पिटिटिव है, और हम देखते हैं कि ये फैंटेसी गेमिंग बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है अभी, शायद सारे प्लेयर ही किसी न किसी फैंटेसी गेमिंग के साथ एसोसिएट है। तो मैं समझना चाहता था कि लाइक वाई यू आर एंटरिंग दिस मार्केट, और क्या इस पे थॉट प्रोसेस है पूरा, और समथिंग मोर अबाउट द क्रिक पे समथिंग। ये तेरा क्वेश्चन ये है, आर यू एंटरिंग द फैंटेसी मार्केट? मैंने तो नहीं बोला, हो सकता है मैं सबको फुद्दू बना रहा हूँ। हो सकता है पोर्टर सही हो, मैं गलत हूँ कुछ भी हो सकता है तो गुड अटेम्प्ट। Yeah. More questions? हेलो, नमस्ते सर। सर आपने 7 साल नौकरी भी करी है, तो मैं एक नौकरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सर। लाइक अभी मार्केट में ना हायरिंग या टैलेंट एक्विजिशन का जो मॉडल है बहुत दुर्गति हुई है कि 3 महीने का नोटिस पीरियड दो, इमीडिएट ज्वाइनिंग चाहिए, और मतलब कैंडिडेट की इतनी अनसर्टिनिटी बन जाती है कि मैं आज अगर नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, मैं 3 महीने बाद कहाँ ज्वाइन करूँगा। तो सर आपने 7 साल नौकरी भी करी है, पर आपने एक एज अ बिजनेस ओनर लोगों को हायर भी करा है, तो सर क्या मेंटालिटी रहती है? मतलब एक आप अपनी नौकरी लोगों को काम करवाना चाहते हो ना, आप टीम मानते हो उन्हें, तो ये तो एक्सप्लॉइटेशन हो गई ना। तो सर मतलब क्या वे फॉरवर्ड होनी चाहिए? नहीं, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहली चीज़ तुम एक चीज़ समझो, इंडिया में राइट टू लाइवलीहुड इज़ अबव एवरीथिंग। ठीक है, तो आपको ना HR वाले बड़े अच्छे क्लॉज साइन कराते हैं, नोटिस पीरियड, नॉन कम्पीट, नॉन सॉलिसिट, राइट, कि आप कंपीटिंग कंपनी में नहीं जा सकते मेरे बाद, आप 3 महीने नोटिस पीरियड पूरा करोगे। भाई साहब, इनमें से एक भी लॉ कोर्ट में इन्फोर्सेबल ही नहीं है। मेरे को आज तक एक बंदा दिखा दे जो बोल रहा हो कि मेरे को ना मेरी कंपनी ले गई कोर्ट, और कोर्ट ने मेरे अगेंस्ट ऑर्डर दे दिया कि मैंने 3 महीने का नोटिस पीरियड बोला था, मैं तो चला गया अगले दिन। है ही नहीं ठीक है, वो समझो तो सच्चाई समझो ना कि क्या हो सकता है। भाई लोग ना एक्सट्रीम पे जाते ही नहीं है, कहीं पे कोर्ट कचहरी की बात आ गई ना, वकील की बात आ गई, सबके हाथ पांव फूल जाते हैं। हाँ लिखा तो ऐसा हुआ है, मैंने ही साइन किया था। भाई करा था तो क्या हो गया? अगर तूने साइन कर दिया कंपनी में कि मैं आपका गुलाम हूँ, ठीक है, तो कोर्ट में जाके इन्फोर्स करा लेगा कि तू ये तो मेरा स्लेव है अब। ठीक है, तो जब कंपनी लिख रही है ना 3 मंथ नोटिस पीरियड, ये भाई तू अगले दिन उठ के चले जा, वो कुछ नहीं उखाड़ सकते। एंड क्या कहते हैं, जो हायर कर रहा है ना उसको भी घंटा नहीं फर्क पड़ रहा। ठीक है, उनको तो बंदा चाहिए कल। कोई कंपनी, मैंने इतनी धंधे बनाए हैं, हर बंदे को बंदा ऐसा चाहिए होता है जो कल ज्वाइन कर ले। रिक्वायरमेंट ही तब आती है। ठीक है, और मार्केट में जाओ तो सब बोल रहे होते हैं जी मेरा तो 1 महीने का नोटिस पीरियड है। मैं मतलब भाग के आ जाना, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या को लेंगे तेरा यार? तेरे मतलब HR वाले इतने वेले नहीं है कि बैठ के एक बंदे की 2 महीने की या 3 महीने की सैलरी के पीछे कोर्ट कचहरी जाएंगे। वकील की कॉस्ट ज़्यादा है तेरी सैलरी की कॉस्ट से, समझ, सच्ची बता रहा हूँ।
तो कोई तो बैठ के कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लेगा ना कि साला कोर्ट भी चले जाऊं, फिर कोई समझदार वकील होगा बता भी देगा भाई साहब ये तो राइट ऑफ लाइवलीहुड है, वो तो प्रिवेल करेगा, ठीक है। तो ये ना एचआर की बातों में मत आओ यार, मतलब एचआर से तो बेवकूफ़ मत बनो, किसी से भी बन लो। Yeah. Any more questions? Thank you, sir. So, sir, my question is related to ये जो blunt और straightforwardness है, and you have created a cult and have given a validation for people, who are straightforward and very much जो घुमा के बात नहीं करते हैं, सीधा कहते हैं. तो सर, बट आपने entrepreneur journey से पहले आप कोटक में भी थे, एमेक्स में भी थे. वहाँ पे अगर हम सब अभी जाएंगे कॉर्पोरेट में, सभी प्लेसमेंट्स लेकर वहीं जाएंगे, बहुत से लोग इसी एटीट्यूड के साथ अभी भी चलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड. वहाँ जाके अगर हम अपने मैनेजर के सामने हम इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात तो नहीं कर सकते, डिप्लोमेटिक ही रहना है, या जूनियर के सामने भी हम अपने ऐसे नहीं कर सकते. तो आप जब इन दोनों जगह पर थे तो क्या आप भी इसी तरीके से मतलब डिप्लोमेट थे, या फिर आप वहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, और अगर थे तो फिर ये काम किया, या फिर मतलब यू हैड टू फेस सम काइंड ऑफ ट्रबल? नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड तो था, बट मतलब हायरार्की भी थी ना भाई, वो तेरा बॉस है, ठीक है, होले जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है क्या, मतलब एंड ऑफ द डे उसको रिपोर्ट करना है. तो सी ना, जॉब आपकी वैसी लिमिटेशन है, आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का अपसाइड क्या है, ठीक है. आपका एक नेचुरल नेचर है, बट मेरे को एक बात समझ आ गई थी कि यार ये नौकरी में स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का ना कोई अपसाइड नहीं मिल रहा है, मतलब इट्स नॉट अ बैड थिंग, कोई डाउन साइड भी नहीं है बाय द वे, ठीक है. तुम अगर लॉजिक की बात कर रहे हो और तरीके से कर रहे हो, ठीक है, कोई तुम्हारे को कभी दबाएगा नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं खेलेगा, कभी नीचा नहीं करेगा, ठीक है. तो बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्स विद एन एलिमेंट ऑफ बीइंग डिसलाइक्ड, ये मान के चलो. जो मतलब चुपड़ी हुई बातें करता है ना, उसकी लाइकेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है. इफ़ यू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड देन यू बी रेडी टू बी डिसलाइक्ड. वो एक्सपेक्टेशन मत रखना कि हाँ जी मैं सीधी बात भी करूँगा और मेरे को सब पसंद भी करेंगे, ठीक है. वो तभी हो सकता है जब तुमने कुछ बहुत ज़्यादा फोड़ दिया हो, ठीक है. बट इन जॉब आप कितना ही फोड़ लोगे. सो दैट्स माई व्यू. थैंक यू सर. सर, एक छोटा सा सवाल है, जैसे आपने अभी अपने स्टेटमेंट में कहा कि बी स्कूल में एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ी सिखाते हैं, मतलब वो तो मैनेजर बनना सिखाते हैं, ये भी सही बात है. बट शार्क टैंक पर भी ऐसे जितने भी शार्क्स थे मेजॉरिटी IMC ISB से थे, आप भी IIM अहमदाबाद से हैं, और जितने भी काफ़ी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स IIM से हैं, बी स्कूल से हैं. तो अगर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं सिखाते हैं तो बी स्कूल में ऐसा क्या सिखाते हैं कि वो इतने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं? बहुत से लोगों ने ये कह दिया है कि हमें सेफ साइड मिल जाता है, दैट 6 महीने अगर फेल भी हो गए तो वापस कहीं ना कहीं शुरू कर लेंगे. सिर्फ यही रीज़न है, या आपको लगता है कुछ और भी है? जी, मैं बाकियों का नहीं बता यार, मैं अपना तो ये बता सकता हूँ कि हाँ ठीक है, बी स्कूल गया था तो मैं 9 साल बैंक में काम किया तो पैसे कमा लिए, तो एबिलिटी टू टेक रिस्क आ गया कि ठीक है पैसा तो देख लिया, इसके बाद लाइफस्टाइल वैसे ऊपर नहीं जा रहा, मेंटल ब्लॉक आ गया लाइफस्टाइल चेंज होने का. तो हाँ वही फ़र्क पड़ता है. बट सी एम्पेरिकली तुम जो देखते हो वो कॉजेशन नहीं होती, ठीक है. अगर तेरे को 8 में से 10 नहीं 10 में से 8 सॉरी 10 में से 8 एंटरप्रेन्योर IIM के दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि IIM ने उनको एंटरप्रेन्योर बना दिया है. तो समझ रहा है? इट्स जस्ट दैट 2-3 चीज़ें हैं. एक तो जो इन्वेस्टर हैं वो बेवकूफ़ हैं, उनको IIM वालों पे पैसे लगाने हैं, बायस है उनका. अब देख क्या हाल हो रहा है, कोई प्रॉफिट बनाता नहीं है फिर, ठीक है. तो वो थोड़ा इन्वेस्टर के जो व्यू है ना कि हाँ जी इसके पास तो 2 डिग्री है, इस पे पैसा लगा दो, क्योंकि उसका खुद का व्यू तो है नहीं, दिमाग तो चलता नहीं है, मार्केट पता नहीं है, ठीक है. तो उसको लग रहा है जी पढ़े लिखे घोड़े पे पैसे लगाए हैं, तो मेरे को कल कोई पूछेगा तूने इस पे पैसे क्यों लगाए, तो मैं बोल दूंगा हाँ जी ये तो पढ़ा लिखा था, देखो IIT IIM गया था. तो वो इन्वेस्टर का बायस है, और इन्वेस्टर के बायस की वजह से पैसा उन पे लग जाता है. एंड इस करके अब भी एटलीस्ट जो एग्जिस्टिंग क्रॉप है उसमें से IIT IIM के बहुत सारे लोग आए हुए हैं, ठीक है. बट IIM ने उनको वो नहीं बनाया है.
जो वो क्लेम कर रहे हैं, वो उनमें कुछ और था, डिस्पाइट आई एम बने हैं वो, इज ऑल आई एम ट्राइंग टू से. Yeah, we have time for one more question, the last question for tonight. Yeah. गुड इवनिंग सर. काफ़ी सिंपल सा सवाल है. सर 10 करोड़ के डाइनिंग टेबल पे बैठ के डिनर करने में कैसी फीलिंग आती है सर? थैंक्स यार, तूने सिंपल सवाल पूछ लिया, कॉम्प्लिकेटेड का मेरे जवाब ही नहीं होते मेरे पास तो. हाँ मतलब मैं भी यही पूछना चाहता हूँ कि 10 करोड़ की डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाने में कैसी फीलिंग आती है जिसके पास 10 करोड़ की डाइनिंग टेबल हो. ठीक, मेरे पास तो 3 लाख की टेबल है, पर मज़ा बहुत आता है उसमें. ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर. और ऐसा नहीं है, मेरी एस्पिरेशन है 10 करोड़ की डाइनिंग टेबल खरीदने की, ठीक है, बट फिर वो ऐसी टेबल होनी चाहिए कि मैं बैठूं कुर्सी पे, मेरे मुंह खोले बिना वो समझ ले कि इसको चाइनीज़ खाना है, और 15 मिनट के अंदर टेबल ऐसी टर्न हो और उसके अंदर से चाइनीज़ खाना निकले, ठीक है, तो उस टेबल के मैं 10 करोड़ रुपए दे दूंगा. बाकी आई थिंक इन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड आई थिंक आई कैन क्लेम कि लोगों को लगता है मेरे पास सबसे महंगी टेबल है दुनिया की. मेरे को नहीं लगता किसी भी पैलेस, फोर्ट, शातों में इतनी बड़ी टेबल किसी ने भी क्लेम करी होगी. बट थैंक यू. Thank you so much. There were two things very unique about tonight. एक तो बैक बेंचर से भी क्वेश्चन आ गए, so something was good. And दूसरा, I think the kind of turnout that you see, I think 50 Shades of Grey भी लगाते तो इतने लोग नहीं आते. So I think that you know, it just speaks volumes of the person that, you know, we thought we had 30 minutes. He's given us 1 hour. And I think each and every response he has given to us is that of a maverick. And I thought about this. We've seen Top Gun, and वो जब वो दिखाता है 2 minutes 30 seconds में उसको वो course पार करना है. And what he does is, to prove what he is capable of, he drops it to 2 minutes 15 seconds. And he does it. And the reason why he's called maverick is because he never plays by the rule book. I think that word is fitting of the man that we've been talking to for the last 1 hour. I would like everyone to just stand up and give a huge round of applause to Mr. Asneer Grover. It's been an honor to have you as our guest today. Your experiences and expertise have given us so much to take from here. And we truly appreciate the effort you've put into sharing our knowledge with us.